Today we have a topic, and it's quite a different topic because earlier, whenever I have done any kind of um, Facebook Live or Instagram Live, I spoke about planets and about other things, actually about individual horoscope as well, which I will definitely take towards the end of this webinar. And but today I thought, let me talk about something different, and that's something which people always look for. And I'm getting a lot of calls and messages that we are in a very different situation. It is different era now, and things are going haywire, and we have no clue where we are heading, and ye zindagi mein kya ho raha hai actually achanak. And for most of us, this is the first ever time this situation has become like that, and that we are not used to it. Yeah, good evening. Hi everyone. Yeah, I can see your messages. Thank you for joining me. Thank you for giving your time, because it is about two-way interaction and communication. Because जब तक मैं कहूँगा नहीं और कोई सुनेगा नहीं, तो वो समझ में क्या आएगा, या how I will convey my thoughts about astrology and making life better actually, uh, with the help of astrology. Because astrology is such a beautiful science. I feel I'm blessed to have whatever knowledge I have, and in my 20 years of journey so far with astrology, I feel I'm the chosen one. I'm the privileged, who can help a person to understand his journey, to know about your strength, your weakness, your potential. So if that becomes a bond like a friend, so I think it has a great meaning and a great purpose to do it. And I do it with all my pure conscience. I do it as if I'm seeing a horoscope of my family. So this is the belief I have. Yeah, this is my profession. So obviously, it is chargeable, but otherwise, I have no doubt about my passion towards it, because I believe, if I can, my advice and my things, if I can change anyone's life by giving him or her the right kind of indication, and about tell something about the journey, I think it makes sense. So this is what I am here for. So today, the topic which we have is how to strengthen your life. So that is something which is a very interesting topic, and I have decided to take two planets at a time. Sometime I might go even for a single planet, in our future webinars, because depending on which planet I'm talking about. So today I thought I will do something, to begin with luminaries, the planet which are shining, the planet which are visible from our naked eye, and the most important planet which can influence in our life in every possible way. And those two planets are sun and moon. किसी की पोइट्री थी, दिस इज नॉट माइन. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिसाइट माय ओन पोइट्री. बस एक लाइन है, किसी ने लिखी थी कि बनना है तो सूरज बन, सितारों में क्या रखा है. That means you have to shine, because this is one life, and everyone wants to do something big for others, and spread his name and get recognition in this life. So the Suraj and Chand, they are the most important two planet in astrology. Sun is I think the only visible god, the god which gives us the light and the light source basically. Astrological term में अगर मैं उसे बोलूँ तो sun rules our atma, the soul. Whenever we talk about any planet, हर planet का एक significance है. जैसे Mars मतलब भाई, Mercury मतलब friends, relatives, Sun मतलब father, Moon मतलब mother, Jupiter मतलब teachers, your guru, spirituality, even God. Saturn matter, people who are working under you. So there are different significance associated with every planet. Sun is a planet which rules, पहली बात वो आपके father को rule करता है. So one thing which you cannot choose is your parent, your father. अगर मैं वहां से शुरू करूं, because I'm talking about sun first and then I will come back to moon. और एस्ट्रोलॉजी भी वहीं से शुरू होती है. इट सेज प्रारंभ में कह रहा था कि सन, तो सन इज योर फादर, बिकॉज यू कांट चूज योर फादर. यू हैव नो क्लू कि जब आप पैदा होने वाले थे तब आप बच्चन बनेंगे, गांधी बनेंगे, अंबानी बनेंगे, मोदी बनेंगे, या फिर कहीं के नहीं रहेंगे. तो वी हैव नो क्लू, वी हैव नो कंट्रोल ऑन विच फैमिली वी विल बी बोर्न इन एंड विच सिटी इट विल बी. कोई बहुत छोटे से गांव में पैदा होता है, छोटी सी झोपड़ी में पैदा होता है, कोई बहुत बड़े विला बंगलों में पैदा होता है. तो इट इज हु कंट्रोल्स दैट. तो बोला गया कि सबसे पहले कि प्रारब्ध, the deeds done in the past birth, और उसकी वजह से this birth is responsible because of those deeds. अब वो deeds हो चुके हैं, we can't do anything about it. We are here, we are interacting, so obviously we are born, and we have a journey now, so which we have no control on. Sun rules your soul, atma, जिसकी कोई बात नहीं करता. Whenever you see some video or something about someone,
has departed, then you talk about atma, atma amar hai, ajar hai, it is always there. तो दैट इज द ओनली टाइम वी टॉक अबाउट सोल, बाकी कभी कोई बात नहीं करता, माइंड बॉडी सोल तो हम लोग कहते रहते हैं, बट वी नेवर अंडरस्टैंड व्हाट सोल इज ऑल अबाउट एंड व्हाट द जर्नी एंड व्हाट वी रियल आर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन हु एम आई एंड हु आई एम. So I think we need to learn that or understand that in a very deeper manner, but today I'm not talking about that. Today I'm just giving you significance of what this planets are indicating, and that too sun and moon. सन जो है वो हमारी सोल है, आत्मा है, फादर है, वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, प्राइड है, और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग या तो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में जो पैदा होते हैं, जिनका एक्सॉल्टेड सन होता है, दे हैव एक्सॉल्टेड सन नंबर 10 on 10, सबसे पावरफुल सन उनका होता है, एंड दे हैव ऑल द सबसे पहले उनकी जो, अगर मैं कहूं कि उनकी प्रॉब्लम कहूं या उनकी मैं जो उनकी पॉजिटिव साइड कहूं, दैट इज देयर डिग्निटी. They have great sense of maintaining their pride and values in life, and तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, डिग्निटी भी है, प्राइड भी है, बट वो थोड़ा सा एक थिन लाइन है, वो बहुत जल्दी ईगो में कन्वर्ट भी हो जाता है. और अर्ली मॉर्निंग में जिनका सन होता है, उनके लगन में सन आ जाता है. तो ऐसे लोग कहते हैं कि कभी झुकते नहीं, एंड दे डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, तो उनका एक प्राइड बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो वहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, बट दे आर लाइक दैट, तो दे आर रूलर्स. कहते हैं कि अगर सूरज और मर्क्यूरी ज्योतिष में डिक्टम है, अगर वो अर्ली मॉर्निंग को पैदा हुआ है, और ऑब्वियसली विच फैमिली यू आर बोर्न इन, एज आई हैव सेड कि मोदी या गांधी या व्हाटएवर, अभी तो ऑप्शंस ओपन भी हैं आगे. तो आप अगर ये कौन पैदा हुआ है, बोले बच्चा जो है ये राजा बनेगा, तो दैट इज अमेजिंग. सन एंड मर्क्यूरी ऑन द ascendant मींस एक राजा का जन्म हुआ है, ऐसा कहा जाता था. तो सन को सबसे पहले, अगर हम अब जिसका मार्च और अप्रैल में मैंने कहा बर्थ हुआ, सॉरी 15 अप्रैल से 14, जैसे हम लोग ये मनाते हैं बैसाखी, तो 14 अप्रैल से 14 में, दैट वाज द डेट. तो ये जो डेट है, यहाँ से सन बिकम्स एक्सॉल्टेड. लेकिन बाकी लोगों का क्या, जिनका मॉर्निंग में बर्थ नहीं हुआ, और जो लोग अप्रैल और मई में बॉर्न नहीं हुए, उनको सन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? बिकॉज सन ऑल्सो रूल्स योर अथॉरिटी इन दिस लाइफ, रिकॉग्निशन इन दिस लाइफ. यार मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा कहता है कि यार संदीप भाई, मुझे कभी यश नहीं मिलता, आई डू एवरीथिंग गुड फ्रॉम माई एंड एंड आई डोंट गेट रिकॉग्निशन, या मुझे तालियां किसी और के लिए बजती हैं, काम मैं करता हूँ, रन मैं बनाता हूँ, मैन ऑफ द मैच किसी और को मिल जाता है. तो व्हाई, what is the reason behind it? Why, क्या I lack that? मैं कंपनी में इतने सालों से हूँ, उन्होंने किसी और को अपॉइंट किया और मेरे ऊपर बिठा दिया, now I have to report someone else. Why? तो यानी जो पावर है, जो पोजीशन है, जो सीट है, बेसिकली जिसके लिए आप, वी ऑलवेज एस्पायर फॉर, a man is known by the address he has. ये मैंने अभी भी बनाया. तो अगर पूछे कि मेरा ऑफिस कहाँ है, मैं कहूंगा कि 10 जनपद में मेरा ऑफिस है, तो बात खत्म हो गई. तो वेयर यू, तो ये जो सीट है, ये पोजीशन है, ये कौन दिलाएगा? ये सन के पास है. बिकॉज फिफ्थ, नंबर 5, 1 2 3 4 5, फिफ्थ साइन इज लियो, एंड लियो का जो रूलर है वो सन है. लियो इज अ प्लैनेट जो आपके फिफ्थ हाउस को रूल करता है. जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, और वो इंसान, हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, हमारा बेटा क्या करेगा, हमारी बेटी क्या करेगी, अभी तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, बेटियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं एक्चुअली पहले से. तो फिफ्थ हाउस जो होता है, वो उसको देख के बताया जा सकता है कि उस इंसान के बच्चे क्या गुल खिलाने वाले हैं, व्हाट लेवल ही विल रीच, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ लर्निंग, फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ रिकॉग्निशन, जो मैंने कहा, फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ अथॉरिटी एंड योर स्टेटस इन दिस लाइफ. सब फिफ्थ हाउस का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है. बोलते हैं पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल यू गेट इट फ्रॉम लियो, जो आपके 5वां घर है, जो इसको सूरज रूल करता है, जिसकी बात मैं आज कर रहा हूं. यानी कर्मों का फल, यानी डीड्स जो आपने किए थे, उसका जो पॉजिटिव, अगर आप कुछ क्रेडिट लेकर आए हैं, अगर पिछले जन्म में आपने गुल नहीं खिलाए थे, बिकॉज वी हैव नो कंट्रोल ऑन दैट, अब तो हम पैदा हो गए, हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या किया था. तो जो भी किया था, अब जो मैं कहना चाहता हूं उसमें यह है कि फिफ्थ हाउस जो है, वो सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जो आपने संचित कर्म, ऐसा एक वर्ड यूज होता है, संचित कर्म, पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का जो पॉजिटिविटी आप बैलेंस लेकर आए हैं, ये जो बैलेंस शीट है, वो वहां पे फिफ्थ हाउस देता है. एट्थ हाउस जो है, वो देता है कि आपके क्या डेबिट अकाउंट चल रहा है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलता. आई विल टॉक अबाउट इट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पे मैं कह रहा था, फिफ्थ हाउस आपके बच्चों को बताता है, और फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों को बताता है, कि हमारी खुद की कुंडली में कि हमारे बच्चे कैसे पैदा होने वाले हैं, और उनका क्या रोल रहेगा. और फिफ्थ हाउस हमारे लर्निंग को बताता है कि आपके एजुकेशन में कोई रुकावट तो नहीं है, और किस लेवल का एजुकेशन आपको मिल सकता है. फिफ्थ हाउस में एक और अच्छी चीज है, फिफ्थ हाउस में अगर किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग फिफ्थ हाउस है,
planet Lagna Lord is there or moon is placed in 5th house, इंसान को love at first sight हो जाता है. एक चाहत होती है उसको, एक रिकॉग्निशन की चाहत होती है कि मुझे ये अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, मेरे लिए तालियां बजनी चाहिए, मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए. तो ये उनका एक सोच हमेशा जो है वो मन में रहता है. तो ऐसे लोगों को अभी तो कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी आ गई है, तो जो लर्निंग है वो बहुत हमारी इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल पे आप पहुंचेंगे या कोई हिंड्रेंस तो नहीं है. तो मैं कह रहा था कि जिसका 5th हाउस में मून है या जहाँ पे अगर आपका लग्न लॉर्ड 5th हाउस में है, ऐसे लोगों की डिजायर जो होती है शेयर मार्केट की तरफ, गैम्बलिंग की तरफ, रिकॉग्निशन की तरफ, लर्निंग की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग, और उनको रिकॉग्निशन चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे लोग कभी भी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करते. ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं कि जिसके वजह से दे वांट टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, दिस इज व्हाट दे फील. और उसको अगर बताया भी जाए कि भाई साहब आई थिंक यू विल मेक योर प्रेजेंस फेल्ट वेयरएवर यू विल बी, तो दे फील वेरी गुड अबाउट इट बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट. ये उनका पहला डिजायर है. तो ओके तो ये बहुत लोगों की ऐसी सोच है. तो मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप सोचोगे नहीं तो होगा कैसे. आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. व्हाट यू वांट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव इन ड्रीम्स. कहते हैं दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कहेंगे ना आई एम वेरी कंटेंट एंड आई एम ओके विद इट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, आई विल से दैट इज नॉट राइट. यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ डिजायर, क्योंकि 5th हाउस आपको वो देने की कोशिश करेगा. वो जो रोशनी है, वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो ऑप्टिमिज्म है, जितने मंत्र हैं बहुत सारे ऐसे, अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे, अंधेरे से उजाले की तरफ, वो भी इसी लाइट की बात कर रहा है, पॉजिटिविटी की बात कर रहा है. दिवाली में हम लोग दिया जलाते हैं क्योंकि दिवाली में अमावस्या होती है, वो भी उस लाइट की बात कर रहा है. अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भैया लाइट जलाइए, वो भी ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी की बात करता है. तो एवरीथिंग इज अबाउट लाइट. एंड व्हाट इज लाइट? One source of light which is visible during daytime is sun. और अगर सूरज नहीं होता तो हम ना होते. इस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को, इस पूरे वेजिटेशन को, हमारी पूरी लाइफ सोर्स को, प्राण शक्ति को सूरज रूल करता है, सन रूल करता है. और सन अगर कुंडली में वीक है तो फिर थोड़ी सी समस्या आती है रिकॉग्निशन पाने में, और कुछ इवन लर्निंग में या बाकी और चीजों में. डिपेंड करता है बाकी आपका हॉरोस्कोप, बिकॉज 9 प्लैनेट है, 12 हाउसेज हैं, कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह गया हुआ है, नवांश में उसकी क्या पोजीशन है, वो डेबिलिटेटेड है कि एक्सॉल्टेड है, कौन सी दशा आपकी चल रही है. तो एस्ट्रोलॉजी यू कैन पिन पॉइंट जस्ट लाइक दैट, एक पॉइंट से कह के अगर आप कह रहे हैं, दैट इज नॉट राइट. सो आज जो मैं बातें कर रहा हूँ ये अपने अपने हॉरोस्कोप में मत लगा लीजिएगा, बिकॉज इट इज ए वेरी बिग साइंस, बहुत वास्ट सिचुएशन है. अपना पर्सनल हॉरोस्कोप आप जरूर चेक करवाइए, उसमें आपको समझ में आएगा. व्हेनेवर आई डू माय रीडिंग्स फॉर माय क्लाइंट, फॉर माय फ्रेंड्स, तो मैं उनको बताता हूँ, समझाता हूँ कि व्हाई इट इज हैपनिंग. इट इज नॉट लाइक हाँ आंख बंद करके सब हो जाएगा और ये हो सकता है. नो नो नो. एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक, एवरीथिंग हैज अ रीजन, एंड एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट फेल एनीवन. मैंने एक बार लिखा था कि एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट, बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट. So because of growing number of astrologers, because of people feel कि ये बहुत easy money making business है, थोड़ी सी 1-2 किताबें पढ़ लो और उसके बाद कहानी सुना लो और उसके बाद पैसे आपको मिल जाएंगे. This is not right. पहली बात, आपका intention wrong है. मैंने जब astrology सीखी थी, I never thought of in my wildest dream कि I will become an astrologer. Never ever in my life. And I landed up in becoming an astrologer. So now I look back, जब मैं अपनी horoscope कभी देखता हूँ once in few years, then I see अरे यार ये दिस हॉरोस्कोप बिलोंग्स टू एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर का भी एक हॉरोस्कोप होता है. लेकिन मैं इसकी दूसरी साइड बोलूंगा कि एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत आसान है, एस्ट्रोलॉजी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. फर्स्ट यू नीड टू ग्रो अप, फर्स्ट यू नीड टू बिकम स्पिरिचुअल, टू अंडरस्टैंड एंड बिकम डिटैच फ्रॉम दोज पीपल जिनकी आप कुंडली देख रहे हैं. then only you will be able to handle it, because I've seen a lot of people who have learned astrology and have spoiled their life. खुद के वो रूल्स अपने फैमिली के लिए लगाते हैं, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, और फिर खुद डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर उनके मन में आ जाता है कि वो इसका अफेयर होने वाला है, और फिर वो अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं. तो दे आर मेनी अदर इफ एंड बट एस्ट्रिक्स कंडीशन अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी में है, बहुत बड़ी लिस्ट है. अगर आपने उसको नहीं किया, प्लैनेट्स की साइकोलॉजी को नहीं समझा, देन इवन आफ्टर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी you will go wrong. You can learn astrology, but you can't predict, and the prediction of your prediction will never become correct, because you have failed to understand the purpose, which has to be at a conscious level, because it is a divine science. And secondly, you are not able to detach from those things which people are affected of. That includes your family even. तो ये मैं आपको एक वार्निंग देना चाह रहा था कि भाई एस्ट्रोलॉजी सीखिए जरूर, लेकिन उसकी कंडीशन है. और वैसे भी कहते हैं ज्योतिष में पात्र होना बहुत जरूरी है. अब किसी ने कहा कि उसका डेबिलिटेटेड सन है, आई एम टॉकिंग अबाउट सन, तो मुझे भटकना नहीं चाहिए और टाइम इज रन. तो देखिए, सन अलग अलग घरों में जब सन होता है उसका अलग अलग रिजल्ट होता है. तो आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा. जैसे किसी ने कहा मेरे 7th हाउस में सन है तो क्या होगा भाई साहब, आग लग जाएगी, आग. और साथ आग कहाँ लगेगी? मैरिड लाइफ में, बिकॉज सन इज प्लेस इन 7th हाउस. अगर तो आपने
इमोशंस के पानी से उस आग को नहीं बुझाया, प्यार और मोहब्बत का इजहार नहीं किया, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। तो यू नीड टू बी मोर केयरिंग एंड लविंग टुवर्ड्स योर स्पाउस। अब आप आपके हस्बैंड है, वाइफ है, मैंने देखा नहीं, नाम क्या था, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो हर प्लैनेट सन जो है अलग अलग घरों में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, मे बी इट इज अ गुड आइडिया एक्चुअली। मे बी आई विल टॉक अबाउट इट मे बी इन माय फ्यूचर वेबिनार्स, आई विल डू इट मोर रेगुलरली बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन। फिर इंसान जो है वो भटक कर इंग्लिश में पहुंच गया है, तो मुझे हिंदी में आप लोग याद दिलाते रहिए। यू नो there are a lot of people who wanted to me to talk in Hindi, तो I'm sorry, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि सूरज अगर आपके अगर राइट प्लेस में नहीं है, वीक है, या अगर ठीक भी है और आपको नहीं पता वो कहाँ है, लेट इट बी, आई डोंट केयर वेयर माय सन इज, जस्ट टेल मी, यू नो, हाउ टू गेट मोर रिकॉग्निशन, दिस यू मस्ट बी थिंकिंग, एम आई राइट ऑन दैट? ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी है, जो उनका उसका टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, वो यही सोच रहे हैं कि भाई साहब बेटा रहने दीजिए, जहां भी पैदा हुआ है, जब भी पैदा हुए थे, खाली ये बताइए कि उनको स्ट्रेंथन कैसे करें और उनको कहाँ के लेके जाएं। राइट, एग्जैक्टली, समवन सेड। ओके, तो यहाँ पे मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, देयर आर मेनी वेज। बोलते हैं दान करना चाहिए, कहते हैं कि मंत्र करना चाहिए, उस ग्रह की पूजा करनी चाहिए, उस ग्रह के अधिपति की पूजा करनी चाहिए, उस ग्रह के देवता की पूजा करना चाहिए, यंत्र लगा लेना चाहिए, उन ग्रहों के कलर्स को अपनी जिंदगी से जोड़ लेना चाहिए। लोग कपड़े भी पहनते हैं क्योंकि यू नो ट्यूसडे है, आई एम वेयरिंग रेड, यू नो दैट। सो अब ये उसे नहीं पता कि रेड मंगल उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसको रेड नहीं पहनना चाहिए, बट पीपल आर फॉलोइंग समथिंग। तो एनीवेज, तो वो अलग बात है। तो देयर आर मेनी वेज टू ईदर पेसिफाई योर प्लैनेट और मेक इट स्ट्रॉन्गर। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट स्ट्रेंथन योर प्लैनेट। इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ भाई साहब? तो आप हमेशा ग्रह को आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, आपको ग्रह को पेसिफाई भी करना है। मान लीजिए कोई ग्रह अभी आपके लिए अच्छा नहीं है, यू नो, किसी ने कहा आदित्य हृदय सूत्र, वेरी गुड आलोक, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो बिल्कुल ये सन का आदित्य हृदय सूत्रम को कहते हैं कि आप चैंट करिए टू स्ट्रेंथन योर सन, वेरी गुड, लेकिन आई विल कम बैक टू दैट। तो हमेशा आपको वो प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्लैनेट को दोस्त कैसे बनाएं, वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है वो बात की बात है, दोस्त होना जरूरी है। जो मैंने कहा ना, प्लैनेट की साइकोलॉजी व्हिच आई हैव अंडरस्टूड इन माय लास्ट 20 years of journey with astrology is the psychology of planet or psychology of astrology, which is what I do. तो सन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मुझे दोस्त बनाने के लिए, सबसे पहले आपको सन जैसा बनना पड़ेगा। सन इज अबाउट ऑप्टिमिज्म, अबाउट पॉजिटिविटी। तो पहले अपनी अप्रोच को रोशनी नुमा करिए। यू नो व्हेन यू आर देयर, यू नो यू आर लाइक ए सनलाइट इन दिस हॉल। यू नो आप आती हैं तो रोशनी फैल जाती है। यू नो दैट, तो भी पीपल दे फ्लड अराउंड, तो दे मे से टू समवन, बट व्हाट आई मीन इज इट इज अबाउट योर ऑरा। और ये ऑरा स्ट्रॉन्ग होता कैसे है? when you meditate, when you have no negative thing in your mind। तो देखिए अभी सब हम लोग सिचुएशन में, हर इंसान टेंशन में है, और ऐसे में ऑप्टिमिज्म लाना आसान तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चन साहब हमेशा कहते रहते हैं, और मैं भी कहता हूँ कि कोशिश जरूर करिए। यू नो, मिली नहीं मंजिल तो इल्जाम ना लगा सितारों पर, चमकते तो हैं रोज मगर तेरे सो जाने के बाद। तो भाई साहब जब आप सोते हैं, यानी व्हेन यू आर गिविंग अप एंड व्हेन यू आर नॉट डूइंग योर कर्मा, व्हेन यू आर नॉट पुटिंग हार्ड वर्क, तो वो कैसे वो स्ट्रेंथन होगा? तो सन के लिए पहले ऑप्टिमिज्म। दूसरा, सन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो यू नीड टू हैव गुड रिलेशन विद योर फादर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव नो क्लू। आप मत बोलिए, यू नो ये आपके जमाने की बात नहीं है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस विद योर फादर, यू नो हु विल ऑलवेज बी एटलीस्ट 25 years ahead than you, अपनी जिंदगी के जो उनके एक्सपीरियंस है, तो आपका जो सन है वो वीक है, ये बात मान लीजिए। That means you will never be able to reach the height you are looking for, because your sun का जो मेजर सिग्निफिकेंस है फादर, वो आपका वीक हो गया। तीसरा एस्पेक्ट मैं आपको कह सकता हूँ, रूबी। The planet which the stone which rules your planet sun is ruby, माणिक। राजा महाराजा, हर राजा रूबी पहनता था। यू नो ऑब्वियसली उनके एस्ट्रोलजर थे, और राजा का सन स्ट्रांग होना चाहिए तभी वो राजा बनता है। यू नो ये बहुत नॉर्मल है। तो ये नहीं कि वो रॉन्ग हाउस में प्लेस्ड होगा या रॉन्ग हाउस का लॉर्ड होगा, नेवर एवर, यू नो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग लोग रूबी पहनते हैं। रूबी को राइट हैंड, आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसके नीचे सन का माउंट है, उसको पहना जाता है। रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष के का होना चाहिए रविवार, विद इन फर्स्ट आवर सनराइज, सुबह साढ़े, जो भी आप गूगल करिए कि भाई संडे अभी आने वाला है, तो उस दिन आपके सिटी में सनराइज कितने बजे, तो लेट इट अज्यूम इट इज 5:30 सनराइज है, तो बिटवीन 5:30 टू 6:30 के बीच में जो सूर्य की होरा होती है, उस दिन आपको उसको पहनना है। दिया जलाइए इस तरफ फेस करके, और मंत्र करिए सन का, और उसको पंचामृत से प्यूरिफाई करिए, उसका अभिषेक होता है। यू नो लोग कहते हैं कि उसको धोते हैं, इट इज अभिषेक।
कहते हैं रुद्र अभिषेक, दैट मीन्स जो भी नेगेटिविटी उस स्टोन के साथ है, जहां से भी वो माइंड से आया है, कितने हाथों से गुजरा है, उसकी सारी नेगेटिविटी को वो रुद्र अभिषेक दूर कर देता है। दूध, घी, दही, गंगा जल, शहद, ये पंचामृत के 2-2 ड्रॉप से उसको रब करके अभिषेक करके भावना से बनी, और फिर कृपया करके उसको मत उतारियो। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कि या आई एम वेयरिंग रूबी, जब से आपने बताया संदीप जी, इट इज ओके, बट लेकिन तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई साहब ये रूबी आप पहनते हैं 24 आवर्स? नो, आई रिमूव इट बिफोर गोइंग टू बेड, और मैं तो नहाने के बाद आई डोंट लाइक टू वेयर एनीथिंग। खलास। तो भाई साहब फिर बचा क्या? एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे आप एक स्टोन पहनते हैं, दैट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो उसको आप कैसे, तो आपने उतार दिया, किसी भी मुहूर्त में पहन लिया, किसी और मुहूर्त में बैंड बज जाएगी भाई साहब, तो इट इज नॉट राइट। डॉक्टर्स कहते हैं मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब होती हैं, तो ये खाने से पहले, ये खाने के 2 घंटे बाद, देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट टाइमिंग। आयुर्वेद के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कब इसको सनसेट से पहले, सनसेट के बाद, और ये तो स्टोन की बात है which has a cosmic energy, cosmic connection, कोई प्रूफ नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मे नॉट बी बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी, बट एंड दे से अरे आई डोंट बिलीव इन एनी स्टोन, तो वो उनकी खुद की सोच है। बट ये हर प्लैनेट का एक सिग्निफिकेंस है जो उससे स्टोन से कनेक्ट करता है, और वो पर्टिकुलर स्टोन उस प्लैनेट की सारी एनर्जीज को गवर्न करता है। तो एक फेथ के साथ, कहते हैं कि लाइट आती है तो उससे ट्रांसफॉर्म होती है बॉडी के अंदर, उसके जो गुडनेस है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का हमारी बॉडी में समा जाता है। एंड दिस एवरीथिंग इज व्हाट मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, क्या है? इट इज ऑल अबाउट हियर, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर परसीविंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर लाइफ, सब कुछ इधर है। तो सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल और केमिकल, व्हाटएवर इट इज, हु इज कंट्रोलिंग दैट? दीज आर ऑल एनर्जीज विद इन यू from the past birth, this birth, or the deeds you are doing। तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ जाती। तो मुझे लगता है कि आपको उस पे, किसी ने कहा वेट क्या होना चाहिए, वैसे तो लोग कहते हैं जिसको बड़ा स्टोन बेचना होता है वो कहता है 1/10 ऑफ द बॉडी वेट, किलो के हिसाब से नहीं रत्ती के हिसाब से। तो जैसे 60 kg है तो कहते हैं कि 6 कैरेट, बट अकॉर्डिंग टू मी क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट देन साइज। तो मैंने 9 कैरेट का पहन लिया है स्टोन भाई साहब, और उसकी क्वालिटी किसी लायक नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट। और मैंने 3.5 कैरेट का पहना हुआ है, अमेजिंग क्वालिटी, दैट इज बेटर। सो गो फॉर ए बेटर क्वालिटी एंड गो फॉर सम सर्टिफिकेशन, क्योंकि स्टोन का बिजनेस बहुत डाइसी बिजनेस होता है। यू हैव नो क्लू कि जिस स्टोन के आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं वो 1 लाख का है कि 30,000 का है। यू विल हैव नो आइडिया, यू आर नॉट ए जेमोलॉजिस्ट, यू विल नेवर कम टू नो। इनफैक्ट अगर मैं रूबी की बात करूं, क्योंकि आज मैं सन की बात कर रहा हूं सबसे पहले, बैंकॉक में ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, वहां पे दरवाजा अंदर से बंद करके, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव दिस नॉलेज। वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही 10 रुपए के रूबी, मतलब बहुत ही एक घटिया क्वालिटी के रूबी में ग्लास फिल करते हैं, एंड दैट रूबी लुक्स अमेजिंग। वो लाखों का रूबी लगने लगता है, उसके अंदर जो लस्टर है, उसके अंदर जो क्लैरिटी है, लुक सो ब्यूटीफुल। एंड वो जब आप पहनोगे उसका क्या आपको असर होगा? 0। तो इसीलिए आपको मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट सेइंग एवरी जेमोलॉजिस्ट इज नॉट राइट, बट आप कम से कम एक भरोसे की जगह से लीजिए, एक सर्टिफिकेशन के साथ। जैसे GI है, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जहां पे आपको तसल्ली होगी, बिकॉज ये लाइफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है। इट इज नॉट लाइक यू हैव टू बाय अगेन एंड अगेन की गाड़ी पुरानी हो गई या नया मॉडल आ गया है। तो जो स्टोन आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके प्लैनेट को स्ट्रांग बना सकता है, और बहुत आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंस प्ले करता है, तो why not buy a good quality gem and wear it for the rest of your life and feel good about it? So I think ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि वो रोल है, तो that is something which is so good। अब तीसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, मंत्र मैं बता दूं, सूरज का जो सबसे बड़ा मंत्र है आदित्य सूत्रम, किसी ने लिखा था, आई सेड इट बिकॉज इट इज समथिंग ग्रेट। अब किसी ने कहा व्हाट अबाउट चैंटिंग ओम, पूरा मंत्र लिख के दिया भाई साहब ने अभी, फेसिंग ईस्ट टेकिंग बार। बिल्कुल, देखिए सूरज के बहुत सारे मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र आप कर लीजिए, गूगल इज फुल ऑफ नॉलेज, यू कैन डू दैट। आई एम नॉट गोइंग टू दैट बिकॉज द टाइम इज रनिंग रियली फास्ट। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मंत्र, सबसे पावरफुल मंत्र पूरी कायनात में, वैसे सबका अपना अपना बिलीफ है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिलीविंग डिफरेंट थिंग्स एंड दे से नो आवर मंत्र इज गुड एंड दिस इज व्हाटएवर, बट मैं एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट बोल रहा हूँ, सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली दैट वे। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो मंत्र है गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल कैसे हुआ, और ये भी मैं आपको हाउ टू डिटरमिन हु शुड वियर इट एंड व्हाट इट डजंट सूट ए पर्सन। दिस इज व्हाट आई सेड प्रियंका, आप शायद लेट जोड़ी थी कि पहले, हाँ ये मैं एक लाइन तो जरूर ऐड करूंगा कि अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, गेट योर हॉरोस्कोप चेक, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आई वांट रिकॉग्निशन, आई वांट फेम, आई वांट स्टेटस, आई वांट टू डू ग्रेट इन लाइफ, आई वांट टू डू गुड इन स्टडीज, आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, आई वांट टू शाइन, आई वांट ऑल द फेम इन दिस लाइफ। तो वो सबको चाहिए, लेकिन what if sun, like Priyanka has asked a valid question, what if sun doesn't rule your right house? अगर वो 6th lord है, अब you cannot wear a ruby, you are not supposed to wear it,
8th लॉर्ड है, नहीं पहन सकते। 12th लॉर्ड है, खर्चे बढ़ा देगा। 6th लॉर्ड का अगर सन है तो आपके ऋण, रोग, शत्रु, डिजीज, एनिमीज और डेब्ट्स, आपकी बैंड बच जाएगी। 8th हाउस का लॉर्ड है, डिलेज, डिनाइल्स, हर्डल्स हो जाएगा। तो देखिए स्टोन पहनने के बहुत सारे रूल हैं, कोई भी राशि से डायरेक्ट स्टोन नहीं पहने, कुंडली दिखाकर स्टोन पहने, दशा होनी चाहिए। पहला रूल है कि वो प्लैनेट आपके जो हेल्थ का लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड है, उसका दुश्मन नहीं होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्योंकि अगर आपने स्टोन पहन लिया गेंस के लिए और वो आपका हेल्थ का लॉर्ड है तो आपकी बैंड बच जाएगी भाई साहब, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, बिकॉज हेल्थ इज अबव एवरीथिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो प्लीज अपना हॉरोस्कोप जरूर आप चेक कराइए, उसके बिना अगर आपने कोशिश करी तो फिर इट विल हार्म यू, और फिर आप मुझे ब्लेम मत करिएगा। तो डोंट वियर इट जस्ट लाइक दैट। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ गया था, बिकॉज अभी देखिए 35 हो गया है, 4:35, एंड आई हैव टू कम बैक टू मून। मुझे लगता नहीं है कि मून का नंबर आएगा, तो आई थिंक व्हाट आई विल डू इज टुडे आई विल टॉक ओनली अबाउट सन। Next webinar we'll talk about moon, because moon is according to me is the most important planet in astrology. So do you agree with me? Shall I take moon in my next session? Because चंद्रमा से बढ़कर कुछ नहीं है पूरी ज्योतिष में। मैं आपको बता दूं, पूरी कायनात जो है 8 के 8 ग्रह इस 9वें ग्रह को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारी पूरी जिंदगी चलती है। हम कैसा सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, एवरीथिंग एक्चुअली, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय योर मून। सो मुझे लगता है कि मून को अगर मैं भागते दौड़ते खत्म कर दूं तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। मतलब मुझे कम से कम अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे मैंने देखा कि 35 मिनट कैसे गुजर गए मुझे पता नहीं, और अभी भी पिक्चर बाकी है सन के बारे में। सो आई थिंक दैट विल नॉट बी राइट। ओके, please give basic insight about moon too. Not today, Sanjay. This is what I'm saying. We will do it in the next webinar. I will do it very soon actually. और बाकी किसी को अगर personally देखिए जाना है तो मैं वो जरूर उसके आपको links भेज देता हूँ. You can definitely, because astrology is all about one on one. सबकी personal जिंदगी है और उसको एक public platform पे discuss करना में मुझे भी uncomfortable होता है. And I think you should not. और वो justify भी नहीं होगा. शादी कब होगी मेरी किसी ने सवाल किया, मैंने कहा हो जाएगी भाई साहब अगस्त में. That's not the right answer. Are you prepared for marriage? Are you in the right frame of mind to get married? Is this the right time to get married? The dasha which you are running is okay. The mindset which you have is all right. This is not the way. You need to change your approach. So how? When you will be ready, when you will be aware about your weaknesses. That is the purpose of astrology. तो वो कब होगा? जब मैं आपकी जन्म कुंडली देख के आपको बताऊंगा कि भाई साहब आपने क्यों जिंदगी की बैंड बजाई हुई है, how you are, why this is not the way. तो मुझे लगता है कि आप लोग वो एनालिसिस जरूर कराइए. And there are many ways. I will share all those links towards the end of this webinar. But कुछ लोगों को, एक दो लोगों को, those who are willing कि उनके पत्ते पब्लिक में शो हो सकते हैं, if they are okay with it, तो for me it is all right. I will take a couple of queries here. That is all right. तो चलिए, आई एम रिलीव्ड एटलीस्ट कि मैं अब मून बहुत तसल्ली से करूंगा, क्योंकि मून बहुत बड़ा रोल है, वो हमारी राशि रूल करता है। इंडिया में कहते हैं व्हाट इज योर राशि, और राशि 12 राशियां हैं, 12 राशि के सिग्निफिकेंस है, तो वो उसके लिए 1 घंटा भी कम है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू टेक मून इन द नेक्स्ट वेबिनार। ग्रेट। तो अब मैं बात दोबारा सन पे लौट आता हूँ। तो गायत्री मंत्र को मैं कह रहा था कि क्यों सबसे ज्यादा पावरफुल है। देखिए गायत्री मंत्र, जैसे अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि 5th हाउस जो होता है, जहाँ पे लियो रूल करता है, सन की बात कर रहा था, रिकॉग्निशन की, लर्निंग की, बच्चों की, स्टेटस की, वांट टू डू मोर एंड बिकम कैप्टन ऑफ द टीम और व्हाटएवर। 8th हाउस की मैंने बात की थी, अगर आप याद हो, पिछले जन्मों के हुए कर्मों का फल 5th हाउस, और कर्म मतलब फल मतलब पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस अगर आप लाए हैं पिछले जन्म से, वो 5th हाउस है। और व्हाट इफ यू हैव ए डेबिट बैलेंस मिलॉर्ड? अब मेहनत आप कर रहे हैं, कहते हैं ज्योतिष भी कहता है कर्म प्रधान है, आप भी कहते हैं कि सब भाग्य का खेल है, तो फिर सब भाग्य से ही मिलना है, तो फिर काम मेहनत कौन करे? तो किसी ने कहा था कि भाई साहब हो सकता है भाग्य में लिखा हो कि मेहनत से ही मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी। और तीसरी बात ये होती है कि मेहनत तो हर इंसान करता है। मैंने एक बार लिखा था, नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती, नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। भाई साहब मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाले भी किया करते हैं, उनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? रात दिन लगे हुए हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, और 2 वक्त की रोटी भी उनको ठीक से नहीं मिलती। तो उससे ज्यादा मेहनत कोई कर सकता है? नहीं। बट फिर भी मेहनत के बावजूद उनको सक्सेस नहीं मिला या किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब किस्मत प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 70% मुझे लगता है आपके हाथ में नहीं है, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। 30% आपके हाथ में, जिसको हम फ्री विल कहते हैं। आई विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे, बिकॉज आई डोंट वांट टू डाइवर्ट। तो फ्री विल मतलब कैसे आप अपनी चीजों को यूटिलाइज करते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज को, आपकी फैमिली को, आपकी एजुकेशन को, आपकी मीन्स व्हाटएवर यू हैव इन हैंड, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग इट। तो वो 30% आपके हाथ में, फ्री विल।
आप सो जाओ, डैड आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, आई वांट टू स्टार्ट माय समथिंग ऑफ माय ओन। डैड ने पूरी जिंदगी लगा दी एक लेवल बनाने में, एंड यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो दिस इज व्हाट न्यू जनरेशन इज डूइंग। दैट्स द रीजन जो मैंने सन की बात कर रहा था कि फादर के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो सन तो आपका वैसे ही वीक हो गया, तो रिकॉग्निशन में आप 25 साल और निकाल दीजिए। सो एनीवेज, तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि पांचवा घर हमारे पुण्य का है, पिछले जन्मों के पुण्य जो है, किस्मत के आगे कुछ नहीं। यू आर राइट संदीप जी, थैंक यू सो मच राठौड़ साहब, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 8th हाउस है वो है हमारे डेब्ट्स, यानी जब आप डेबिट के साथ पैदा हुए और पिछले जन्मों का आपको पता ही नहीं है आपने क्या गुल खिलाए थे, अब क्या करें, इतने मेहनत कर रहे हैं लोग और अभी भी वो जिंदगी में पूरी जिंदगी साइकिल पे गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेहनत भी कर ली, पंडित जी से मिले, सारे उपाय भी हमने कर लिए, नाम की स्पेलिंग भी बदल ली, अब कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो रॉन्ग क्या है? वो रॉन्ग है आपके डेबिट बैलेंस which you have bought from the last birth. There are few religions with they don't believe in different births, but हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक साइंस है, जो ज्योतिष है, वो पूरी हमारी जन्मों पे चलती है, पिछला जन्म अगला जन्म सब उसी पे चलता है। तो 8वें घर के अगर वो डेप्थ है तो वो कौन बताएगा और वो दूर कैसे होंगे? तो बोला गया कि 8वां घर यानी अष्टाक्षरी मंत्र, 8 into 3 is 24 लेटर्स, ये है गायत्री मंत्र की ताकत। यानी वो अष्टाक्षरी मंत्र की अगर आप साधना करते हैं, और 8वां घर क्या है? पाताल। 8th हाउस इज पाताल। जो अगर ऑकल्ट नॉलेज है, एनर्जीज हैं, प्राणिक हीलिंग है, रेकी, एनीथिंग टू डू विद एनर्जी, एस्ट्रोलॉजी, पुराने जमाने में गड़ा हुआ खजाना मिलता था 8वें घर की दशा में। I must quote one example. PVR Narasimha Rao, he became prime minister of India during his 8th Lord Dasha. अचानक, जब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो प्राइम मिनिस्टर तो कौन बनेगा, गांधी अगर नाम के आगे नहीं है तो यू कैन नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, दैट्स व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक अर्लियर। तो वो तो जंगल में उन्होंने लाइब्रेरी भी बना ली थी और रिटायर होने की पूरी तैयारी कर चुके थे, और अचानक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अचानक अगर कुछ होता है वो 8वें घर की दशा से होता है। तो 8th हाउस इज सो पावरफुल, गड़ा हुआ खजाना मैंने बोला, और खजाना नॉलेज का खजाना, जो ज्योतिष है, बिना 8th हाउस स्ट्रांग हुए, या मेरे सारे योग 8th हाउस बनते हैं, तो वो सारे बिना उसके स्ट्रांग, यू कांट गो इनसाइड, यू कांट रियलाइज अबाउट एनीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। तो वो 8वां घर है। लेकिन 8वें घर में अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो वो क्या करता है, वो आपको पुल डाउन कर देता है, तो उसको दूर करने का काम है गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, बट डोंट से इट लाउडली, क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल है, सबसे पायस है, सबसे प्योर है, और उसके बोलने के बहुत तरीके हैं। दैट इज अ राइट वे, अर्ली मॉर्निंग में, और कुशा का आपका वो आसन होना चाहिए, फिर वो प्योरीफाई आपको गंगा जल से करना पड़ेगा, उसके लिए अलग मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, एंड आई नो वी कांट डू इट प्रैक्टिकली। तो क्या बोला क्या कि रूल है कि अगर गायत्री मंत्र को आप मन में करते हैं तो देन इट इज ऑल राइट। सो व्हेन यू आर नॉट रिसाइटिंग इट लाउडली, तो फिर देन इट एनीथिंग गोइंग अंदर से, किसी ने कहा था कि सांसों की माला में, नुसरत फतेह अली खान साहब का था, सांसों की माला में लिख दूं का नाम। सो व्हेनेवर यू आर, वेरेवर यू आर, सांसों की माला, यू डोंट नीड टू, पंडित जी ने कहा है कि इतने लाख मंत्र का जाप करिए, व्हाई यू आर काउंटिंग, यू डोंट नीड टू काउंट इट। भगवान से ये मंदिर में 5 बार जाऊंगा मेरी मनोकामना पूरी होगी, ये गिमिक्स हैं, डोंट डू दैट। अपने मन से जाइए, व्हाई यू आर काउंटिंग। तो ये गलत बात है, आप भी गिन के करोगे, वो भी गिन के देगा। सो आई थिंक आई होप यू एग्री विद मी। थैंक यू निखिल भाई, आई सी यू एग्री। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि आपको डू चैंट दैट मंत्र, और क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है, जब मैं चांद की बात करूंगा, चांद जो हमारे मन को रूल करता है, आज नहीं करने वाला हूँ, आई एम जस्ट रिलेटिंग टू दैट। एंड हर इंसान को नो मैटर कि हाउ बिग द पर्सन इज, how much money he has, or how much wealth, or big house he has, or bank balance he has, or recognition or power he has, most important thing is above that is how happy he is। और वो हैप्पीनेस कौन रूल करता है? मून। उस इंसान को, इसलिए मैंने बोला कि पूरा एक सेशन 1 घंटा भी कम है, अगले वेबिनार में वी आर टॉकिंग अबाउट मून। तो चांद को रोशनी कहां से मिलती है भाई साहब, टेल मी, ये चांद की रोशनी कहां से होती है? ये चांद सा रोशन चेहरा, how do get chand get light from? Sun, of course। श्रुति ने कहा सन, आलोक ने कहा सन, बलविंदर ने कहा सन, वेरी गुड। एएसआर कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सन, यस, या उस पर हो गई थी, देख लिया मैंने। पूनम ने कहा सन, वेरी गुड। तो सुन जरा, तो मेरे नाम के आगे भी सन है, SUN, और डीप है DEEP। जो सन मतलब दिन की लाइट, और दीप मतलब रात की लाइट, और लाइट का ही काम मैं करता हूँ, अंधेरे से उजाले की तरफ। दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, व्हिच इज सो ब्यूटीफुल, एंड आई फील honored, I feel blessed that in this life I've got something where I can show the right light to the people,
so that they don't falter or take any wrong decision and live a peaceful and happy life, which is more important. तो सबसे important है जिंदगी में happiness. तो when you chant गायत्री मंत्र, you make your mind happy. That is important. और अगर आपकी सिंह राशि है तो आप रूबी पहनिए. राशि मतलब मन, तो आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, वो आपको रिकॉग्निशन भी देगा अगर इट इज प्लेस इन द राइट हाउस. किसी ने लिखा था कि व्हाट इफ अक्टूबर में जब सन डेबिलिटेटेड हो जाता है, सूर्य नीच का हो जाता है, तब क्या होता है? देखिए मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स दैट इंक्लूड अमिताभ बच्चन जी, उनका डेबिलिटेटेड सन है, उनकी मून साइन भी लिब्रा है और सन साइन भी लिब्रा. और एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, Sandeep is spreading light. Thank you so much, Alok. that's a good one. Thank you. So sun is all about light. तो जो मैं क्या कह रहा था, मैं उधर चला गया. तो पॉजिटिविटी एंड लाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. हाँ, डेबिलिटेटेड सन की बात कर रहा था. आई जस्ट गॉट इट बैक. तो अगर नीच का सूर्य है, दैट मींस सन इज अबाउट आत्मा एंड सोल. तो बोला आत्मा नीच की हो गई, ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो बोला कि भाई साहब ये कलयुग है, और ये कलयुग में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, देन फिर आप अटक जाओगे. एंड आई हैव सीन ऑल द एक्सॉल्टेड सन वाले जितने भी लोग हैं, वो अपने ईगो के चलते, maybe they are right sometimes, but sometimes they may not be right, and sometimes they are just feeling that I know I have decided to do this, and हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. एंड जितने मुहावरे बने हैं वो ऐसे ही बने हुए, ऊंची नाक वाले. और मैं आपको बता दूं, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप सब इंटर रिलेटेड. जब आप नोज की हाइट देखते हैं ऊपर, किसी की नोज थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, दैट शोज कि या तो ये पर्सन का एक्सॉल्टेड सन है, या ये अर्ली मॉर्निंग में बॉर्न हुआ है, या दोपहर में बॉर्न हुआ है. सन इज वेरी स्ट्रांग इन हिज हॉरोस्कोप. तो ऐसे लोग बहुत इगोस्टिक होते हैं. तो कहते हैं ऊंची नाक वाले लोग. नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी, नाक तो कान क्यों नहीं काटा? नाक कटने से क्या होता है? प्राइड. सूर्पनखा की नाक काट दी थी लक्ष्मण ने, यानी प्राइड खत्म कर दी थी रावण की. तो दैट वो ईगो हर्ट हुआ था. तो ये पुराने मुहावरे, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते. तो सब नाक पे क्यों बना दिए मुहावरे? पुराने जमाने में सारे हमारे दादा परदादा, दादी परदादी, नाना परनाना, सबको एस्ट्रोलॉजी के पूरे रूल्स मालूम थे. ये मैं आपको बता दूं, मे बी फ्यू जनरेशन अर्लियर. तो वो सारे मुहावरे पुराने जमाने के हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बने हुए. देयर इज नो लोग हंसते हैं, अब नई जनरेशन के लोग, अरे ये क्या कह रहे हो, बट एवरीथिंग हैज अ रीजन. आयुर्वेद से बड़ी साइंस नहीं है, ज्योतिष से बड़ी कोई साइंस नहीं है. कोई आपको नहीं बता सकती. कंप्यूटर आप अपनी रिपोर्ट निकाल लीजिए किसी भी तरह की, कि जो आपकी नेचर को, कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी साइकोलॉजी को बता दे. नो वन. एक एस्ट्रोलॉजर आपको 10 सेकंड में बता सकता है कि आप कौन है. दैट इज द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. एंड दिस इज समथिंग, आई एम नॉट सेइंग डिपेंड ऑन इट, बट यू मस्ट टेक सजेशन व्हेन यू आर इन अ डिलेमा, व्हेन यू आर इन अ डिस्ट्रेस. जब आपको पता नहीं है कि जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं, हमें कैसे अपनी जिंदगी को बदलना है, व्हाई नॉट कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर. इट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जो आपको आने वाले कम से कम 5 साल, मैं तो पूरी जिंदगी की कहानी सुना देता हूँ, कम से कम आपको 2-3 साल का तो सुना देगा. वो अलग बात है, कई ज्योतिषी कहते हैं मिलिएगा 3 महीने के बाद, तो वो अलग बात है. लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि कम से कम अपने आप को जानिए, डिस्कवर हु यू आर. क्या ये वक्त ठीक है जॉब छोड़ने का? क्या ये वक्त ठीक है बिजनेस करने का? क्या ये स्टोन जो आप पहनना चाहते हैं ठीक है? क्या आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो ये सारी चीजों के जवाब कौन देगा? एस्ट्रोलॉजर. तो आप एक बार आप जान लेंगे, आपको पता है कि आपके लिए ये कर लेना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी, तो इट मेक सेंस. तो अगर डेबिलिटेटेड सन है वहीं पर रह जाता, तो दैट मींस इंसान वैल्यूज और प्रिंसिपल को साइड में रखकर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ये कलयुग है, and कहते हैं in Rome become like Romans. तो people, they use their flexibility. मालूम है कब कौन आपके फादर हैं, कब आपको फादर को नहीं पहचानना है, या कब किसको फादर बनाना है, वो अलग अलग मुहावरे हैं. आई डोंट वांट टू से इट है. तो people they become so flexible that, तो वो they get more success. So I'm not saying, I'm always believe in follow the middle path, which is the most important thing. तो मुझे लगता है कि आप एक अपने हॉरोस्कोप को दिखाइए, और दिखाने के बाद देखिए कि सूरज की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसी है, और सन वहां पे जो है वो क्या करना चाहता है. एंड आई विल से, और किसी ने लिखा है कि 108 बार पढ़े या 24 बार पढ़े. माला ने लिखा है. माला जी, आप शायद लेट जुड़ी थी, मैंने माला के लिए ही मना किया था, आपके लिए नहीं, कि वो माला गिनने की जरूरत नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू काउंट योर मंत्रा. तो जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपकी जिंदगी में मैनेजमेंट कर सकती है, पॉजिटिविटी लाती है, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाती है, आपके वो प्लेनेट को स्ट्रांग बनाती है, तो जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, जिंदगी में रोशनी कर सकता है, मैं सन की बात कर रहा हूँ, तो वो उसको गिनने की क्या जरूरत है. तो आई थिंक यू कैन डू व्हेनेवर यू हैव टाइम. 10 मिनट बैठे बैठे, लेटे लेटे जब भी बैठ जाइए, लेकिन भावना के साथ, इस शिद्दत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, अंदर कनेक्ट होने के साथ, अगर जब आप मंत्र करते हैं, तो फिर you will be at a different state. इसलिए मेडिटेटिव स्टेट में जब मंत्र किया जाता है, आप मैंने देखा है लोग मंत्र कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, उधर मोबाइल में मैसेज आया, इधर माला चला रहे हैं. व्हाट इज द पर्पस? कुछ नहीं होगा.
तो what I'm saying is कि जो भी आपको वो पल मिलते हैं उसको आप करिए. In my forthcoming webinars I will definitely take different ascendants and the placement of that particular planet, उसको strengthen कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया मंत्र से या दान से या रिलेशन इंप्रूव करने से उस पर्टिकुलर ग्रह से या वो स्टोन से जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है. आई वांट टू से समथिंग कि आप अगर आपने देखा हो कि दिस वेबिनार इज ब्रॉट टू यू बाय जेम गुरु, जो मैंने मेंशन किया था. gemguru.in इज अ वेबसाइट एंड इट्स नॉट अबाउट प्रमोटिंग जेम गुरु है. आई नो दिस पर्सन सिंस इयर्स. उनका नाम है भावन, और आप उनसे कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होगे तब आपको लगेगा कि यू आर विद द राइट पर्सन. बिकॉज वैसे तो मुहावरा ये बना था कि ज्वेलर अगर कोई होता है ज्वेलरी बिजनेस में, सॉरी प्लीज डोंट माइंड इट, बहुत सारे ज्वेलर मेरे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं उनको गीता पे भी हाथ पे रख के कसम खिला दीजिए तो वो अपना प्रॉफिट जरूर बना ही लेते हैं. आई एम जस्ट सेइंग, पुराना है, मैंने नहीं बनाया, तो आई एम जस्ट कोटिंग इट. बट आई नो भावन person at a person level, इतने साल हो गए मुझे उनसे जुड़े हुए. He is amazing, he is a gem of a person. I think that is the right statement I should make for, and you should connect, you can connect with him. If you go to gemguru.in and log in and just try to connect with him, or there are even Facebook pages हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, you will see, and then you can inquire about your gem. If sun is your planet, रूबी के लिए आप उनसे इंक्वायर कर सकते हैं, या जो आने वाले वेबिनार में आई विल टेल दैट, सो यू विल फील कंफर्टेबल बिकॉज ही डज फ्रॉम हियर. जैसे मैं यहाँ से करता हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी में वही मेरे दोस्त बनते हैं, वही मुझसे जिंदगी में जुड़ जाते हैं. इट्स नॉट अबाउट कमर्शियल थिंग, इट इज अबाउट हार्ट टू हार्ट, जो दिल से काम करते हैं. तो आई थिंक भवन इज वन ऑफ देम. So I would suggest, and someone say you have a very soothing personality and have a calm aura. Thank you so much, Arjuna, for your compliment. I try to be in a very calm state, and I believe in mantras, I believe in meditation, I believe in looking at a bigger picture. This is how I move in my life, and I'm a dreamer too. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ड्रीम नहीं होना चाहिए, but at the same time you should also know what time you're running. एक acceptance की भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि you don't know where you're heading, you don't know what time is running, you don't know where what good or bad is coming to you. So astrology can give you something. Arjuna is a pranic healer. Oh, so that is a great compliment then. So that means you are reading my aura that way. Thank you, Arjuna, and keep healing people. It is very very important. Any good married life mantra? बलविंदर जी, देखिए मैरिड लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि वाइफ को आपको बॉस बनाना पड़ेगा, और पहले उसको बॉस बनाइए वाइफ को. यस मैम. सेकेंडली आप उसको दोस्त बनाइए सेकेंड लेवल पे. तो अगर आप आई एम योर हस्बैंड, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, एंड हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता है, तो बैंड बजाइए भाई साहब आपकी. बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी बहुत दिनों से, एंड दे हैव ऑलरेडी बिकम वेरी स्ट्रांग. तो मुझे लगता है कि अभी आपको यू हैव टू गिव द सेम वैल्यू, सेम स्पेस टू योर वाइफ्स. तो ये सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ अपनी मैरिड लाइफ के लिए, बिकॉज दे हैव गॉट मोर नॉलेज, दे हैव गॉट मोर बेटर समटाइम बेटर करियर एंड बेटर एजुकेशन, सो दे आर इक्वली अमंग अस. सो मैंने एक बार आर्टिकल लिखा था, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट आई एम गिविंग टू वुमेन. वीनस आर द न्यू मार्स, वीनस आर द न्यू मार्स, मेन आर यू लिसनिंग. उसमें ये लिखा था कि भाई वीनस हैव चेंज, वुमेन हैव चेंज, and men are still the same. So please you need to have more acceptance, give जो मैरिड लाइफ की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोस्ती बहुत जरूरी है. वैसे भी अगर देखिए, अगर आप ज़ोडियाक को देखिए, जो प्लैनेट है रियल मूवमेंट, मार्स जो हमारा अर्थ है, अर्थ इज प्लेस बिटवीन मार्स एंड वीनस. तो मंगल और शुक्र के बीच में, यानी एक मेन आर फ्रॉम मार्स, वीनस, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, उसके बीच में धरती है. तो आप वहां फंसे हुए हैं भाई साहब. तो मुझे लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, विच आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन इज आई बिलीव इन लेडी लक. तो जिस घर में हस्बैंड अपनी वाइफ को दोस्त बनाया हुआ है, या वाइफ ऑल्सो वाइस वर्सा, वाइफ ने अपने हस्बैंड को दोस्त बनाया हुआ है, अगर वहाँ हार्मनी है, वहाँ हैप्पीनेस है, मैरिड लाइफ है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज हैपनिंग हियर एंड देयर एवरीवेयर अबाउट मैरिड लाइफ. और कन्फाइनमेंट में तो फंस गए हम, लॉकडाउन में और प्रॉब्लम शुरू होती जा रही. तो मुझे लगता है कि जिसने दोस्त बनाया हुआ है, और जहाँ हार्मनी है, जहाँ आपस में रिलेशन कॉर्डियल है, फ्रेंडली है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी. ये बात मेरे लिए याद रखिएगा, बिकॉज आई बिलीव इन लेडी लक. वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरीज. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वीनस, आई विल गो इन डिटेल. एंड वीनस इज लग्जरीज, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, लव, एंड लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ विल ब्रिंग लॉट ऑफ लग्जरीज. एंड वीनस मतलब मनी, मतलब लक्ष्मी, और मतलब ग्रह लक्ष्मी. तो अगर भाई साहब, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी खुद की वाइफ मुस्कुरा नहीं रही है आपकी वजह से, तो फिर जिंदगी में मजा नहीं आएगा.
So you need to work on that. I will talk about it later because I don't want to divert myself. So what I'm saying is कि sun के बारे में आप जान गए. Sun has the power to give you recognition. Sun has the power to give you status, your education, your children, your even learning, and the position you want in this life, fame you want in life. Fame बहुत important है. मैंने कहा बनना है तो सूरज बन. तो वो सब सन के पास है. गायत्री मंत्र, गुड रिलेशन विद फादर, ऑरेंज कलर सन का कलर है, उसको आप जिंदगी में कहीं भी जोड़ सकते हैं. सन बाहर जाइए whenever you know बहुत तेज धूप नहीं है, सन की लाइट एब्जॉर्ब करिए, फील दैट सन हैज गॉट, एंड वेयरिंग गुड क्वालिटी रूबी ऑन राइट हैंड रिंग फिंगर जो आपके सन को एनहेंस कर देती है, प्रोवाइडेड सन इज अ लॉर्ड ऑफ गुड हाउस, प्लेज इन गुड हाउस. ये आप वो तब आपको पता चलेगा जब आप अपनी जन्म कुंडली जिंदगी में दिखाएंगे कभी भी किसी अच्छे एस्ट्रोलजर से, and try to understand whether you can wear a ruby or no. और स्पेशली आई एम इन मुंबई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिचुएशन है, बट आप लोग पॉजिटिव रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ. एक मन में एक भावना रखिए. यू नो कहते हैं कि अ पॉजिटिव माइंड विल ऑलवेज क्रिएट हैप्पी हेल्दी बॉडी. यू नो इट इज ऑल हियर. तो आप कुछ भी नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दीजिए. नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ. गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है. दिस टू शैल पास. तो ये घर का माहौल अच्छा बनाइए, अपने स्पाउसेस के साथ, बच्चों के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करिए. जो कर रहा हूँ मैंने कितना मजाक किया देखिए, जबकि इट इज सपोज टू बी अ सीरियस बिजनेस, बट उसके बावजूद आई एम लाइक दिस ओनली इवन वेरेवर आई एम, एंड आई डोंट नीड टू यू नो आई एम लाइक दिस ओनली. तो ट्राई टू बी इन योर हैप्पी स्टेट. यू नो यू आर, आई ऑलवेज बिलीव पीपल हु आर हैप्पी दे आर ब्लेस्ड. खुश नसीब हैं वो लोग. याद आ गया मुझे, तो मैं कितनी बार सुना चुका हूँ और हमेशा सुनाता रहूंगा. मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेर है जो मैं 1000 शेर लिख चुका हूँ शायद. खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं. खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं. तो भाई साहब खुश रहिए. कि क्या लिखा था कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो. जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो. Try to be happy in whatever situation you are in. You are a noble soul, modern Rishi. Nahi, Tarun bhai, it is a great compliment. Thank you so much. I know you are a great politician, and you are doing very good for yourself. I will take it as a very big compliment for myself. Thank you so much. I'm just doing it from my heart, and just God has been kind. God has been very kind. Thank you so much. So ये मेरी बातें आप जरूर मानिए. Thanks Sandeep ji for your insightful as always. Hope to join your next webinar. Thank you so much, Gaurav. I'm reading few messages here. You know, मेरा भी कर्तव्य है कि आप लोग इतनी देर जुड़े रहे, तो I should read few of them. Great session, sir. Thank you. Thanks. Amazing session. Thank you, Richika Junjanwala. Thank you so much, Richika. And looking forward for more such Zoom sessions. ASR ने लिखा, thank you. स्नेहा लिखा, great session, sir. Thank you so much for motivation. Thank you, Poonam. Dhavni लिख रही है, great sir. Thank you so much. You're welcome. Anil Soni, thanks from bottom of my heart. Thank you. Mala is saying, stay blessed. Thank you so much. Vaibhav is saying, hope your insight helped me. Thanks a lot. You're welcome. Moon session का वेट कर रहे हैं आप. ओके, जरूर, मुझे भी बहुत इंतजार है. दैट्स माय फेवरेट प्लैनेट. एंड आशीष कह रहे हैं, थैंक्स सर, ग्रेट सेशन, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल गाइडेंस. कमलेश कह रहे हैं, थैंक यू. वन प्लस ने नमस्कार किया. विशाल राठौड़ कह रहे हैं, थैंक यू. सोम शेखर गणेश राव इज सेइंग, थैंक यू विद लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड. You're welcome, Som Shekhar ji. Thanks to you. Thank you, sir, for guidance from you. Looking forward for more session. Avinash Gadgari. नचिकेता पटनायक कह रहे हैं, गिविंग वाटर टू सन इज बेनिफिट फॉर ऑल. यस, अगर सूरज आपको आग लगा रहा है, जैसे इन 7th हाउस, जैसे गुड वन यू हैव मेड, तो दैट मींस इट इज क्रिएटिंग सम टर्बुलेंस इन मैरिड लाइफ. जैसे इनकी शादी नहीं हो रही थी भाई साहब, इनसे पहले वालों की, ये तो आईएएस ऑफिसर बनने वाले, तो उनको ही कैन ऑफर वाटर टू सन गॉड. वेरी इंपॉर्टेंट. Nirav is saying thanks. Galaxy Note 9 is saying thanks. Thank you, Sandeep, full of knowledge. Thank you. Please write your name next time. Galaxy Note 9. Rakesh M, great smile. Thank you. And Krishna Mohan is saying Nag. Thank you, sir. Redmi. Oh, सारे मोबाइल के ब्रांड हैं आपके. Thank you, sir. Maya Shah is saying thanks. God, thank you. God bless. Radha Masan. Nachiketa Patnaik is saying thank you, sir. Where you can we connect with you for horoscope? Jyoti. You can go to my website, which is sandeepkocher.com. You will come to know about you know, the way to connect. Yeah, Google has been kind to me as well. So take care, guys. It was lovely interacting with you. You were quite you know, responding to me. मेरी ऑडियो से लेकर और हर चीज पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो दैट इज समथिंग, यू नो, व्हिच इज टू वे. आई विश कि मैं कभी वीडियो में भी आपको अपने साथ जोड़ूं, एंड वी कैन टॉक वन ऑन वन दैट वे, वन ऑन, यू नो, दैट आई लव टू डू दैट मोर.
So तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए. Stay home, stay safe, be happy. Look at the positive side of life, and I'm sure things will definitely become better for us. So look forward to see you soon, maybe in couple of days, within 3-4 days this week I'm saying. And one by one we will take all those planets and we'll talk about the significance, how to strengthen it further, how to make your life better, how to mold your stars with your change in approach, and lead a better, prosperous, healthy and happy life. Good luck. God bless you all.